ഹായ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സീനിയർ സഞ്ചാരിയുടെ നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോയിലെ വിവിധ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ രതിശില്പങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിവിധ ശില്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിൽ തന്നെ ഉള്ള സാഞ്ചി എന്ന ഒരു ബുദ്ധ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ റായ്സൻ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ഒരു ഹെറിറ്റ് പൈതൃക കേന്ദ്രമാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം. BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നിർമ്മിതികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം. ബുദ്ധമത ആചാര്യനായ ശ്രീബുദ്ധന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപത്തിലാണ്. യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെന്ററായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും ഏകദേശം 46 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്കായിട്ടാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അശോക ചക്രവർത്തി ഈ സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചത്. പിന്നീട് 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശതവാഹന രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഈ സ്തൂപത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 4 കവാടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. ബുദ്ധന്റെ ജീവിതകഥകളും ജാതക കഥകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന അനേകം ശില്പങ്ങൾ ഈ കവാടങ്ങളിൽ കാണാം. സാഞ്ചി ടൗണിലുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ബുദ്ധമത സമുച്ചയമാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. ബുദ്ധന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർദ്ധഗോളാകൃതിയിൽ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഒരു സ്തൂപം. ആ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്തൂപത്തെ സുർക്കി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ആ പ്ലാസ്റ്റർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ കടന്ന് നശിച്ചുപോയ രീതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ദേവി എന്നാണ്. ദേവി സാഞ്ചിക്കടുത്തുള്ള വിദുഷ എന്ന പട്ടണത്തിലെ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ മകളായിരുന്നു. ഈ സാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ ദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലവും അതുപോലെ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെയും ദേവിയുടെയും വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലവുമാണ്. ഈ കാണുന്നത് BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു മഹാസ്തൂപമാണ്. സ്തൂപം നമ്പർ 2 ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 3-ാമത്തെ സ്തൂപമാണ്, സ്തൂപം നമ്പർ 3. ഇത് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധ ക്ഷേത്രമാണ്. സാഞ്ചി പുരാതന ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന ബുദ്ധമത വാസ്തുവിദ്യയുടെയും ഒക്കെ പരിണാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനേകം വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരാറുണ്ട്. കൂടുതലും നേപ്പാൾ, അതുപോലെ ചൈന, മ്യാൻമാർ, തായ്ലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ, ഈ വിനോദസഞ്ചാരികൾ, വിദേശികൾ ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നത്. ടൂർ ഗൈഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. honey by monkeys to Lord Buddha. ये honey bow. गॉड में honey बड़ी बुद्ध को दिया. और what is this? धर्म चक्र. धर्म चक्र. देख रहे हैं बुद्ध के फुटप्रिंट है. हाँ. धर्म चक्र. देख रहे हैं? काले चक्र, समय चक्र, काले चक्र. This is धम्म चक्र. इनमें भी फॉलो होता है. देख रहे हैं बुद्ध में 32 symbols थे. धर्म चक्र है. One symbol of धर्म चक्र. 100 BC. ബുദ്ധന്റെ പാദം design of the neck. All these different designs. 2100 year old design of the necklace. So modern life में lot of designs used, but not a modern life. ये ancient life में अपना lot of jewelry use करते थे. देख रहे हैं आप? देख रहे हैं हम ये jewelry designs pattern देख. ये pattern सब different है. One stone में no mistake during carving. ये single stone.
monolithic. Sandstone carving, soft stone carving में, but condition after erosion weathering. This is better condition है. Archaeological department time to time chemical cleaning conservation होता है, but original है, not इसमें new added. ये सब old one है. तो सबसे starting में देखिए सर, ये starting में क्या दिख रहा है? You can see this umbrella, छत्र, parasol. ये umbrella है बुद्ध का head, और ये trident, Buddha's two hands, lotus, बुद्ध का chest, और ये Buddha's feet. तो umbrella से feet तक whole body, और ये design ornaments. देख रहे हो मैम, today also select design, old design. अभी select कर सकते हैं. Mauryans का design है उस time का. ये पूरा whole body है. But बुद्ध का no image, no statues. This is before Christ Buddhism, Hinayan. Hinayan Buddhism में no picture. Mahayan Buddhism start idol worship. ये before Christ. बुद्ध को symbol से prayer करते हैं. Wood painting है ना मैम? 1000 का history 200 में है ना? अच्छा 1000 का history 100 में रानी की बाव. रानी की बाव इन गुजरात है ना? 500 का ओल्ड हिस्ट्री रेड फोर्ट 500 रुपीज. वो स्टोन चैरियट इन हम्पी 14 का हम्पी 50 में स्टोन चैरियट है. 10 में कोना 20 में एलोरा. 2000 का हिस्ट्री व्हाई नॉट प्रिंट 2000 रुपीज 2000 में क्यों नहीं? व्हाई नॉट प्रिंट? उनको पता फ्यूचर था कि फ्यूचर में 2000 का भी नोट हिस्ट्री होगा. कम से कम ये एक्टिव तो है. 200 का क्लोज रिलेशन है मनी से. बट स्तूपा के नीचे डाउन साइड में ये पब्लिक नॉट इंडियन. व्हाई नॉट इंडियन? कर्ली हेयर देख रहे हैं. कर्ली हेयर, इनके कैप, स्कर्ट्स एंड लॉन्ग बूट. दिस इज फॉरेनर फ्रॉम ग्रीक फॉरेनर्स. स्तूपा ऑफ सांची फॉलोअर्स फ्रॉम ग्रीक. ये ग्रीक फीचर इनके देख रहे हैं आप. स्तूपा ऑफ सांची है ना? सांची स्तूप है. ट्रिपल अम्ब्रेला हर्मिका गेट ले लेंगे. सांची स्तूप है बट फॉलोअर्स ग्रीक है. यहाँ 10 किलोमीटर फ्रॉम सांची द ग्रीक एम्बेसडर. हाँ 10 किलोमीटर फ्रॉम सांची हेलियोडोरस पिलर है. पाली लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. नेम ऑफ द डोनर्स. पब्लिक डोनेट. ये स्टोन डोनेट किया डोनर ने. ये स्टोन डोनेट किया ये डोनर ने. डिफरेंट पर्सन डोनेट दिस स्टोन फॉर चैरिटी. हॉली प्लेस है द डोनर. ये पाली लैंग्वेज ब्राह्मी. बुद्धा की प्रीचिंग अशोक के रॉक एडिक्ट पाली लैंग्वेज ब्राह्मी लिपि. दानम इज डोनेशन. नेम एंड दानम. ये सबके लास्ट में दानम इज डोनेशन. अभी हाय टूरिस्ट कैम हियर सो द श्रीलंकन लैंग्वेज. सिंघाला. Yes, mostly Sri Lankan tourists come here every day. 300-400 tourists come here. What about these things? Sir, actually 44 stupas. Another followers. ये Buddha stupa. 44 stupas. ये monks stupas. After that, built stupa. 51 monument, 44 stupas. It's a different dynasty. Maurya dynasty, built dynasty, Satavahan dynasty, Shita dynasty. ये देखो सभी में दानम. Language है left से right. दानम. अब दानम. Yes, ये 51 dot. ये क्या है last में? देवी है दानम. 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 डोनेशन दानम मतलब डोनर नेम एंड दानम इज डोनेशन. Who deciphered this language? Englishman James Prince, लैंग्वेज एक्सपर्ट 1837 में. तो स्टार्टिंग में उनको क्लियर दानम से ही स्टार्ट हुआ क्योंकि कॉमन नेम के पीछे दानम का मतलब सेम मीनिंग है. तो ये दानम मतलब डोनेशन आया. सर ये सब्जेक्ट तो मोस्टली गर्ल्स का है वैसे देखा जाए तो. इधर आओ. यूरो में 100 BC का हेयर स्टाइल अभी होता है ना रिप्रेजेंट में. अभी पार्लर में एक न्यू हेयर स्टाइल आया है. उन्होंने कहा बस ये तो मॉडर्न हेयर स्टाइल है. करणी बिल्ड दिस गेट मतलब मदर का नाम एटिया. गौतमी पुत्र सतकर्णी. गौतमी सन सतकर्णी हूँ मैं. तो ये गेट वे बिल्ड बाय सातवाहन डायनेस्टी सतकर्णी. सिद्धार्थ का नाम गौतमी से गौतम. ममा का नाम है ना. तो ये देखो लेफ्ट हैंड राइडर है उस टाइम. देखो ये अशोक राइडिंग करते हैं. उनकी वाइफ राइडिंग करती है. ये देखो थर्ड पैनल में रॉयल प्रोसेशन फ्रॉम द पैलेस. ये चैरियट देख रहे हैं आप. सेकंड में देखो 7 बोधि ट्रीज. द 7 इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड बुद्धा. टॉप पैनल में देखो 5 स्तूपास देख रहे हैं और बोधि ट्रीज. इस गेट पे ऑन द टॉप में देख रहे हैं हाफ सर्कल. दिस इज ब्रोकन. अच्छा ये 100 BC का हेयर स्टाइल मतलब ऑलवेज मॉडर्न था लाइफ. लाइफ जो है ना लग्जरी था एंशिएंट टाइम में भी. देख रहे हैं आप. अच्छा ब्यूटीफुल वो साड़ी देखो महाराष्ट्रियन स्टाइल में नौवारी. और ये ज्वेलरी एंकलेस का सिंबल है. मीनिंग है यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी. यंग गर्ल है. सेकंड रीजन ये है ट्री में नो फ्रूट. एक यंग लेडी या प्रेग्नेंट लेडी टाइम आया फीट से किक किया इसको टच किया और इसमें फ्रूट से स्टार्ट हो गया. मदर से बेबी या ट्री से फ्रूट. एक न्यू टाइम मतलब नया बेबी आना तो न्यू टाइम. फ्रूट आना न्यू टाइम. जैसे लाइक सरस्वती है. उन्होंने कहा लक्ष्मी है. उन्होंने कहा ये पार्वती दुर्गा है कि नहीं. क्योंकि 100 BC में एलिफेंट हु राइडर महाउत. हु इज एलिफेंट महाउत एलिफेंट राइडर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लेडीज. एलिफेंट राइडर लेडीज है. पावर ऑफ गर्ल्स 100 BC में. यस दैट टाइम ये एलिफेंट वाइफ ऑफ अशोका देवी. यस पावर ऑफ वुमेन ऑल्सो दिस टाइम. यू नो दिस सतकर्णी. और सतकर्णी का फुल नेम गौतमी पुत्र सतकर्णी. माय नेम इज सतकर्णी. माय मदर नेम इज गौतमी पुत्र सत. आई एम प्राउड. कॉलेज के लिए सिद्धार्थ प्रिंस गए. मैं प्राउड करते हूँ. विदाउट इन्फॉर्म गए. बिलीव नहीं किया मेरे. इन्फॉर्म करके चले जाते. मैं एग्री थी जाने. लेकिन उनको प्रॉब्लम
इन्फॉर्म था। हाँ, राहुल भी एक दिन का वनडे बेबी राहुल था। ले सर, विदाउट इन्फॉर्म किए नहीं जाना है। जब भी जाना है हाउस से अपना कहीं भी ऑफिस में बोल के जाना है। अकेले अकेले आए ना, तो कुल मिला के सर आपका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आफ्टर Kalinga War, अशोका विजिट किया, बौद्ध गया फॉर प्रेयर ऑफ द बॉडी। आफ्टर Kalinga War का ब्लड बाथ हुआ 100,000 पब्लिक। वेरी क्रूरल किंग। बट अशोक का इन द पाटलिपुत्र पैलेस में नो शांति। अशोक ने ऑलवेज फाइटिंग किया और वर्क। अब एक स्टोरी है इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म का। इंपॉर्टेंट स्टोरी क्या है? बुद्ध की मदर का और बुद्ध के वर्थ होने का स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पिक्चर को विदाउट एनी रीडिंग लिटरेचर का नहीं है, मतलब पिक्टोरियल ये स्टोरी दी है कि इजीली वॉच हो जाए। प्रेग्नेंट व्हाइट एलिफेंट मदर के बेली में एंटर किया अंदर, ऐसा लगा फीलिंग है ना ड्यूरिंग ड्रीम। मम्मा से स्लीपिंग इन माया's ड्रीम, व्हाइट एलिफेंट आया स्पेशल बेबी होगा फ्यूचर में। सो फादर शुद्धोधन इनवाइट, आप आइए सीनियर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज फ्यूचर माय बेबी, शी इज प्रेग्नेंट माया देवी, व्हाइट एलिफेंट आया, एक्साइटेड थे। अशित मुनि एक्सप्लेन किया, ओ महाराज योर बेबी वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर बट 50-50 चांस, योर बेबी इन फ्यूचर ग्रेट एंड ए ग्रेट किंग। सो फादर शुद्धोधन ने कहा, तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में ये बेबी अगर प्रिंस होगा तो 1 पेज का हिस्ट्री होगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, लेकिन बुद्ध बनने के लिए फॉरेस्ट में जाएगा। तो फादर शुद्धोधन ने नोटिस, समर पैलेस, विंटर पैलेस, ब्यूटीफुल वाइफ यशोधरा, लग्जरी लाइफ दिया फॉर 29 ईयर। एक कपिल वस्तु से लुम्बिनी वाला रॉयल प्रोसेशन है। फर्स्ट डिलीवरी कंपलसरी मदर हाउस में, हस्बैंड की फैमिली में नहीं, मदर हाउस में कंपलसरी। बेटे को कपिल वस्तु से लुम्बिनी रॉयल प्रोसेशन फॉर बेबी बर्थ, बेबी को बोर्न होने के लिए। अब जंगल आ गया, नाइट इसने किया और जर्नी ब्रेक किया जंगल में, और मदर को लेबर पेन, बेबी पेन स्टार्ट हो गया। तो लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न अंडर द साल ट्री, फॉरेस्ट में डिलीवरी हुई, इसलिए डिलीवरी इन्फेक्शन हुआ, क्लियर नहीं हुई, सेफ्टी नहीं हुई, और आफ्टर 7 डेज तो सेकंड मामा है। प्रॉब्लम नहीं है, खाते पीते हैं, नो प्रॉब्लम, तो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी है, देख रहे सिंगल आया, ये बेबी है, छोटा बेबी, देखो ये सिंगल आया, ये सिंगल आया, लेकिन अगेन ये डबल कपल हो गया, ये कपल आगे फैमिली में हो गया। आप आफ्टर फैमिली में फिर सिंगल बेबी आया, फिर एंड में देखो सिंगल ही चला गया, क्योंकि सिंगल ही आया था तो सिंगल ही गया है। इस सर्कल ऑफ लाइफ देखो, 1 कपल, फैमिली, बेबीज और एंड, सर्कल ऑफ लाइफ साइकिल देख रहे, एवोल्यूशन देखो सर। यहाँ डाउन में बिफोर ह्यूमन बीइंग क्या आया? वाटर में क्या आया? फिश, है ना। फिर नेक्स्ट क्रोकोडाइल, तो फिश का लाइफ ओनली वाटर, लेकिन क्रोकोडाइल एम्फीबियंस, है ना। फिर इसके बाद एलिफेंट, देन एलिफेंट आया, बट एलिफेंट का फूड क्रोकोडाइल नहीं है, फिश नहीं है, तो वाटर से क्या स्टार्ट हुआ? लोटस, इसमें भी सीडिंग स्टार्ट हो गया, तो सीडिंग से आगे नेक्स्ट 1000 लोटस। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वाटर से आया, फिर वर्ड्स आया, ऐसे ही ह्यूमन लाइफ। तो ये सर्कल ऑफ, व्हाट इज दिस? प्लास्टर, दिस इज स्तूपा कंप्लीट कवर्ड विद प्लास्टर। गारा, क्या बोलते? गारे। सुर्खी, लाइम मोटर, क्या है? लाइम मोटर, लाइम स्टोन, टेराकोटा ब्रिक, शुगर कैन जूस, जैगरी, हनी, ये स्टिकी मटेरियल्स। फुल कवर था 2nd सेंचुरी बीसी में प्लास्टर, बट ड्यूरिंग फॉरेस्ट 500 ईयर अंडर द जंगल, ड्यूरिंग वेजिटेशन, जंगल की वजह से ये डैमेज है, इतना ऑरेंज। अब अशोक पिलर की कंडीशन देखिए, मैम इधर, दिस इज पिलर ऑफ अशोका, ये देखो सर, आपके बैक साइड इसकी साइनिंग देखिए आप, इसका पॉलिश देख रहे हैं, इसका पॉलिश हाईली पॉलिश, 2300 ईयर ओल्ड, देख रहे हैं साइनिंग। ये हाइट था सिंगल पीस 50 फीट, मोनोलिथिक 1 स्टोन था, और ओरिजिनल इज देयर, वहां देखो मैम उस कॉर्नर, यहाँ था। तो ये इस सिंगल स्टोन पिलर को हु डैमेज, कौन डैमेज किया? लोकल फार्मर, फॉरेस्ट में आया, जंगल में ड्यूरिंग हंटिंग, पिलर को डैमेज किया, कट कर दिया। क्यों? व्हाट इज यूज फॉर शुगर कैन जूस मशीन, रोलर के लिए, क्रशिंग के लिए। अशोक पिलर डैमेज किया कि इसका ब्लेज में शुगर कैन जूस मशीन में यूज करें। दिस पिलर इन द टॉप 4 फेसिंग 4 लाइंस, सराउंडिंग पार्ट ऑफ द पिलर 4 लाइंस, टॉप में था लाइन कैपिटल, वो डैमेज पीस म्यूजियम। और अशोक का पिलर में मैसेज है, रॉक एडिक्ट, रूल्स है अशोक के रूल, ये डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन एजुकेशन गर्ल्स और बॉयज का, दोनों बेबी है, चिल्ड्रन है, तो बराबर सेम होना चाहिए। अशोक ने रिटर्न ये मैसेज लिखा, पाली, बिल्कुल पाली प्राकृत, वो अपने को जो गंधार साइड है ना, वो प्राकृत है, यहाँ नॉर्थ में और सेंट्रल में बिल्कुल पाली प्राकृत। तो पाली भाषा ब्राह्मी और प्राकृत खरोश, ये अशोक का मैसेज है, माई रूल्स, ये एक एजुकेशन सेंटर है, गर्ल्स और बॉयज कॉमन एजुकेशन सेंटर में। अगर को-एड, अगर गर्ल्स एंड बॉयज में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे कि ये गर्ल्स है बॉयज है, पनिश, उस टाइम के रूल्स अभी भी है इसके ऊपर जो है। Pali language, is there any connection with the Sanskrit? सर एक्चुअली अब मोस्टली स्टार्टिंग में मौर्यन एंड बुद्धा टाइम में तो पाली का यूज किया है, और बाद
में देन गुप्ता पीरियड में मोस्टली संस्कृत का आफ्टर। हाँ एक्चुअली मैं भी सर का हाँ एक्चुअली हाँ कि दिस इज हाँ संस्कृत लैंग्वेज में या पाली लैंग्वेज में अशोका टाइम दिस पाली लैंग्वेज दिस पब्लिक लैंग्वेज दिस टाइम। व्हाट इज आर्किटेक्चर ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर It's like Roman. रोमन Yeah. दिस इज है ना वो एक्रोपोलिस कोलोसियम टाइप बिल्कुल वो बड़ा बिग थिएटर और ये प्रेयर हॉल दिस इज यूज्ड फॉर प्रेयर 150 people. प्रेयर हॉल बुद्धिज्म में चैत्यालय दिस इज कॉल्ड द चैत्यालय और ये स्तूपा दिस इज स्तंभा। अशोक के टाइम में क्या था मिलता पाली लैंग्वेज में स्तूप स्तंभा चैत्या एंड विहारा मींस मोनेस्ट्री। तो ये है स्तूप और ये स्तंभ ये चैत्या और डाउन साइड में विहारा। अब एक इंपॉर्टेंट लोगो क्या है अपना नेशनल एम्बलम देखो इसमें 4 लाइन देख रहे हैं ना ओरिजिनल फ्रॉम सारनाथ और सांची में भी है ये देखो चक्र भी है बट पार्ट ऑफ पिलर ये कार्विंग्स दिस इज ओरिजिनल और इससे लेफ्ट साइड का ये प्लेन राइट साइड का प्लेन बॉटम नीचे प्लेन क्योंकि ये न्यू एडिशन दिस इज रिस्टोर्ड एक्चुअली गेटवे साउथ टोटली डैमेज कंडीशन सो दिस पार्ट मिसिंग सो द न्यू एडिशन कार्विंग इज ओरिजिनल और ये प्लेन इज नॉट विदाउट कार्विंग दिस इज रिस्टोर्ड। तो फर्स्ट पैनल टॉप पैनल दिस इज मदर ऑफ बुद्धा माया देवी ड्रीम एलिफेंट या अशोका का आफ्टर कलिंगा वॉर आई मीन बुद्धिज्म में ज्वाइन किया देन प्रेयर। थर्ड पैनल ना दिस इज डेमीगॉड यक्ष इन द माउथ नॉट ईटिंग स्नैक क्या है प्लेइंग फ्लूट देख रहे हैं दिस साइड से और दिस साइड है ना दिस प्लेइंग द म्यूजिक इन द हैंड गार्लैंड्स और म्यूजिक Some part is missing. और स्नैक डाइव ना नादेश्वरम फ्लूट है और ये 4 लाइन। और ये देखो सारनाथ डियर पार्क आफ्टर एनलाइटमेंट फर्स्ट सर्मन प्रीचिंग सारनाथ डियर पार्क देखो पब्लिक एंड डियर और बुद्धा प्रीचिंग और ये अशोका विद वाइफ। तो सर ये मेन गेट अशोका टाइम में मेन गेट साउथ गेट रिवर फिशिंग 1 किलोमीटर फ्रॉम साउथ साइड रिवर बेतवा सांची लोकेटेड बैंक ऑफ द रिवर बेतवा। तो साउथ गेट में अशोका पिलर साउथ में अशोक चिन्ह साउथ में प्रेयर हॉल लेफ्ट साइड में टेंपल ये टेंपल है 4th सेंचुरी एडी ये गुप्ता पीरियड में स्टार्ट महायान बुद्धिज्म महायान में टेंपल आया बट नाउ इज नो इमेज ऑफ बुद्धा इनसाइड और देखिए 4 इमेज स्तूपा में रेलिक है और इसमें 4 इमेज है बुद्ध We can see that? हाँ इनसाइड सो सब तो विजिट हाँ यस विदिशा सेकंड वाइफ पटना सो 1 वाइफ पटना में और 1 वाइफ विदिशा में 900 किलोमीटर डिस्टेंस सो एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ना नो प्रॉब्लम 900 किलोमीटर डिस्टेंस यस नो प्रॉब्लम नो एवरीडे टॉकिंग नो फोन नो कॉल no mobile phones. no everyday message so Ashoka happy Both are happy. no problem so Ashoka father is name of Bindusar और Bindusar Chandragupta Maurya father Chandragupta Maurya son Bindusar son Ashok तो अशोक की फर्स्ट पोस्टिंग उज्जैन में गवर्नर और अशोका विदाउट फादर परमिशन मैरिज बिजनेसमैन डॉटर से और फादर नो नॉट एक्सेप्ट योर बिजनेसमैन डॉटर से मैरिज किया तो फ्यूचर में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। अगर आपकी वाइफ रॉयल फैमिली से होती तो सक्सेसफुल रूलर होती। तो सेकंड वाइफ रॉयल फैमिली से आ गई तो वो पाटलिपुत्र में वो फादर की चॉइस थी और अशोक की चॉइस थी। तो एक वाइफ पटना में और एक विदिशा में नो प्रॉब्लम। आफ्टर कलिंगा वॉर अशोक ने बुद्धिज्म ज्वाइन किया तो यहाँ पीसफुल फीलिंग था तो विदिशा देवी के पास आया। अभी दोनों वाइफ बोथ वाइफ कम इन द वन प्लेस तिसरक्षिता वन इज देवी वन इज तिसरक्षिता अभी दोनों वाइफ वन प्लेस में है। Everybody is happy. All are happy. Vidisha Devi not leave. Vidisha Devi, this is my Ashoka. So second wife in the hand. Oh, this is my Ashoka. प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ये my Ashoka मेरा अशोक 2 वाइफ है। तो देख रहा है इसका हैंड देखो कैसे या एकदम उसको जो है ना एकदम प्रेशर से अशोक है। तो अशोका का बॉडी देखो ठीक है अशोक का बॉडी देखो आप दोनों लेग्स देखो ये कहाँ है दोनों नहीं है ये अप और डाउन ऐसा तो अशोक सम्राट ग्रेट मैसेज दिया कि 2 वाइफ में ये ग्रेट एम्परर भी अनहैप्पी है तो बाकी नॉर्मल मैन का क्या होगा इन फ्यूचर में। तो 2 वाइफ में कोई सेफ्टी नहीं है सर और आप तो और बेटर है सर आप तो सिंगल ही है तो सर देख रहे हैं ना दोनों वाइफ। वो सेकंड वाइफ ना नॉट फॉलो बुद्धिज्म उसने बोधि ट्री की ब्रांचेस कट किया तो अशोक वैसे अनहैप्पी थे यहाँ पर जो है ना सेकंड वाइफ नॉट विदिशा के हाथी दंत कारीगरी विदिशा के आइवरी वर्कर ये डिटेल कार्विंग क्या दे कार्विंग वर्क आइवरी वर्कर ये डिटेल में कार्विंग किया ये रिटर्न दिया है यहाँ नॉट नॉर्मल मैन कार्वर जो आर्टिस्ट है वो आइवरी वर्कर पूरा डिटेल में कार्विंग खुद का हेयर। हाँ सर उस टाइम एंशिएंट टाइम में तो सर ये पिक्चर है ना ये पिक्चर है सेकंड वाला। फर्स्ट पिक्चर कहाँ है आपने सर कर्नाटक में विजिट किया ये देखो आप ये सेम पिक्चर मिलेगा आपको इस पिक्चर को देखिए गुलबर्गा नेम ऑफ द प्लेस सन्नति सेम पिक्चर है सर यहाँ देखो आप ये सेंटर में अशोक है ये अमरेला
है, एक वाइफ यहाँ, एक वाइफ यहाँ है, साइड टू वाइफ, टू अटेंडेंट। रिटर्न है नाम कर्नाटक में कि दिस इज अशोक, बट अदर इंस्क्रिप्शन में नॉट रिटर्न नेम ऑफ अशोक। क्या टाइटल है इंस्क्रिप्शंस में? अशोक का टाइटल क्या था? देवा नाम प्रियदर्शी। क्या लिखते थे? देवा नाम, आई एम गॉड डिलीवर, देवा नाम प्रियदर्शी। लेकिन कर्नाटक के रायचूर में मस्की, और वहाँ पे अशोक का रिटर्न द नेम नाम मिलता है कि ये अशोक है। तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर जो है ना, दो वाइफ का है, यहाँ पर भी, और ये बुद्ध की हेयर है, देखो हेयर ऑफ बुद्धा, ये बुद्ध की हेयर है, अम्ब्रेला की। बुद्ध के रेलिक यहाँ है, इनके इनसाइड द रेलिक ऑफ बुद्धा। स्तूपा इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड? स्तूपा सॉलिड डॉग। 500 AD स्टार्ट महायान बुद्धिज्म, और स्तूपा अशोक का टाइम महायाना में, और इमेज का 2 स्कूल था, built in 2 school of art. Buddha image built in 2 school. Gandhar school, Mathura school. You know Gandhar school ka very famous. Where is Bamiyan? Bamiyan. You know Bamiyan story? Yeah. 28 June 2001. वो बामियान वर्ल्ड फेमस इमेज बुद्ध का। हाँ, बामियान, हाँ। डैमेज किया था तालिबान डिस्ट्रॉयड बाय तालिबान, अफगानिस्तान। वो गंधार आर्ट, तो अफगानिस्तान पार्ट ऑफ गंधार आर्ट फ्रॉम गंधार। गंधार मींस गंधार आर्ट, और ये मथुरा। तो गंधार आर्ट में बुद्ध के फेस पैटर्न ऑफ द ग्रीक, और ये मथुरा आर्ट इंडियन है ना, जैसे मेड इन चाइना, तो बुद्ध का फेस चाइनीज होगा। थाईलैंड में थोड़ा थाई टाइप का है। अब जैसे हमने खजुराहो के टेम्पल्स, मध्य प्रदेश का वेरी फेमस टेम्पल खजुराहो, नॉर्थ इंडिया का नागर स्टाइल टेम्पल, और हमारे तमिलनाडु जो महाबलीपुरम, बृहदेश्वर द्राविडियन स्टाइल। नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल, साउथ इंडिया में स्टाइल द्राविडियन स्टाइल, और कर्नाटक में है मिक्स बेसरा, नागर द्राविड़ का मिक्स बेस। तो 3 स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर द्राविड़ बेस। कब स्टैच्यूज बनने लगे, टेम्पल्स आगे। बिफोर दैट नो स्टैच्यू, जस्ट स्तूपा को क्रिएट। गुप्ता डायनेस्टी मतलब गोल्डन एरा, वेरी फेमस रूलर गुप्ता, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, रामगुप्त, भानुगुप्त, 17 रूलर हुए। इसकी कटिंग एंड फिटिंग देख रहे हैं आउटर वॉल का। ये बैलुस्ट्रेड, भूवेदिका बैलुस्ट्रेड। क्या है भूवेदिका? इसका व्हाट इज यूज? एक्चुअली ड्यूरिंग मेडिटेशन एनिमल्स फ्रॉम द जंगल अटैक किया सेफ्टी के लिए, टू प्रोटेक्ट देम, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। ये 2nd सेंचुरी BC में स्टोन, और 3rd सेंचुरी BC में बैम्बू। ये बैम्बू से आया स्टोन। पैटर्न देखो, कटिंग एंड फिटिंग, ये पूरा पैटर्न देख रहा है। 2nd BC का, 800 BC का, स्तूपा 300 BC का, इमेज 500 AD, मतलब 4 डायनेस्टी, मौर्य, शुंगा, शातवाहन और इमेज गुप्ता। तो स्तूपा 1 में 4 डायनेस्टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एवरीडे है। हाँ, टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नो लाइफ। मैम यहाँ देखो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसके ऊपर हेड पे वर्कलोड है, बट फेस एक्सप्रेशन स्माइलिंग, लाफिंग है ना, लाफिंग, ये लाफिंग है। Yeah. देख रहे हैं, सेम हेल्थ इस का भी है, बट नॉट लाफिंग, वन इज सेम। ओके सो सर, हियर 4 यक्ष, वर्कलोड इज सेम, बट मूड एक्सप्रेशन डिफरेंट, एटीट्यूड डिफरेंट। तो 1 हैप्पी है, 1 सैड है, 1 क्राइंग है, 1 एंग्री। सर एवरीबॉडी इज सो मच इज प्रोट्रूडेड। सर एक्चुअली ये दिखाया है कि मतलब हेल्थ से सेम बेटर है, ये बड़ा है। यस सर, ऐसा नहीं कि कोई पुअर या कोई वीक पीपल पे वर्कलोड ज्यादा एक्स्ट्रा हो, नहीं, सेम हेल्थ सेम लोड, बट मूड इज डिफरेंट। तो लाइफ में हमेशा हैप्पी से वर्क करना है। ड्यूरिंग क्राइंग एंग्री वर्क नॉट फिनिश। तो हैप्पी ही वेरी फेमस हो गया। लाफिंग, ये लाफिंग होता है, लाइक ये शेषनाग। റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു പാടാ. What is the story of Sheshnag? शेषनाग 500। हाँ, लॉर्ड बुद्धा ड्यूरिंग मेडिटेशन, बुद्धा फॉरेस्ट में मेडिटेशन टाइम में, नो रूफ, नो शेड, नो प्रोटेक्शन। प्रिंस लाइफ में लग्जरी लाइफ, पैलेस में ऑल फैसिलिटीज, बट प्रिंस सिद्धार्थ विजिट इन जंगल, और जंगल में नो रूफ, नो प्रोटेक्शन, नो अटेंडेंट। सो हु प्रोटेक्ट बुद्धा बॉडी ड्यूरिंग मेडिटेशन इन द समर सीजन, विंटर सीजन? शेषनाग। ये शेषनाग प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ बुद्धा, है ना, In the forest. बुद्धा यस इन द फॉरेस्ट, बोधि ट्री के नीचे लाइट बैठा हुआ। अच्छा, ये स्टोरी क्या है? मदर फादर ब्लाइंड, और बेटा वाटर लेने, देख रहा है, वाटर लेने के लिए क्या हुआ उस टाइम? किंग फ्रॉम इन द जंगल ड्यूरिंग हंटिंग, उस समय स्टोरी देख रहे हैं आप, शूट किया। तो ये बेबी मिस्टेक थी। दिस किंग नॉट नॉलेज की हु इज दिस, दिस किंग थिंकिंग कि डियर कैन ड्रिंक द वाटर, कोई डियर देखो लाइक दिस, ये डियर। बट राजा, oh, this is my mistake. Please, sorry. Why is coming in the jungle? So this is Sivan Kumar like, my mother, father, my wait in the jungle. I need the water. So please, sorry, your mother, father, whole life. I promise. Your mother, father, I help. So this king, the water, mother, father, offer किया. But mother, father not accept. You are kill my son. तो स्टोरी ये है कि मदर फादर को हेल्प किया बेबी। दिस इज बोधिसत्व, सामा जातक, और आफ्टर डेथ फ्यूचर में बुद्ध हो, क्योंकि मदर फादर को हेल्प किया था। तो ये स्टोरी जातक कथाएं हैं, बुद्धिज्म जातक कथाएं भी बुद्धिज्म का पार्ट है। जैसे यहाँ देखो, लॉर्ड बुद्धा से प्रीचिंग देख रहे हैं आप, और ये फॉलोअर्स। अच्छा यहाँ देखो,
this is Mara, or this is Mara daughter. During meditation time में बुद्ध को who disturbance किया? मारा टेम्पटेशन, बुद्ध को मेडिटेशन टाइम में टेम्पटेशन बाय मारा ड्यूरिंग मेडिटेशन। ये इनका मारा भी टेम्पटेशन किया और मारा का डॉटर भी टेम्पटेशन किया। मतलब उसका था फ्यूचर में ये पर्सन फ्यूचर में बुद्ध होगा, नॉलेज होगा, इसलिए उसको डिस्टर्ब कर दो। मतलब लाइफ में होती है ना सर, जब कोई प्रोग्रेस करता है तो उसके लिए डिस्टर्बेंस। सो दिस इज मारा टेम्पटेशन फॉर बुद्धा ड्यूरिंग मेडिटेशन। मतलब लाइक दिस डीमन वो प्रॉब्लम्स देता है गॉड को। ऐसे ही कोई किंग बॉडी द मेक द ब्रिज, देख रहे हैं रिवर पे ब्रिज बना है, देख रहा है हॉल बॉडी। ये हु इज मंकी किंग? बोधिसत्व। 549 जातक कथा स्टोरी है बुद्ध की प्रीवियस लाइफ की। मंकी था, एलिफेंट था, प्रीवियस लाइफ जातक स्टोरी। तो हु इज मंकी किंग? महाकपि, बोधिसत्व महाकपि। ये महाकपि का ग्रुप 80,000 monkeys stay in the mango park in the jungle और बैंक ऑफ द रिवर गंगा रिवर, देख रहे हैं गंगा रिवर देख रहे हैं ना बनारस में। वाराणसी किंग ड्यूरिंग हंटिंग मैंगो पार्क पे अटैक किया और मंकीज का फ्रूट्स लिया। तो मंकी का लीडर बॉडी से रिवर पे ब्रिज बन गया, देख रहे हैं ब्रिज। और 1 by 1 ऑल मंकीज फ्रॉम द बॉडी सेफ्टी के लिए ब्रिज बना और सबको सेफ निकाला। और लास्ट में मंकी किंग इनका असिस्टेंट लीडर था ना कजन बेटा देवदत्त, लास्ट में हाई जंप। तो महाकपि का बैकबोन ये फ्रैक्चर हो गया और ये ट्री के नीचे आ गया, इंजर्ड हो गया। तो बनारसी किंग उसको टॉकिंग करते हैं, यू आर नॉट सक्सेसफुल किंग, आप पूरा पब्लिक को हेल्प किया बट आपको खुद को सेफ्टी नहीं किया, तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप? तो मंकी एक्सप्लेन कि किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की हेल्प, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग कि पब्लिक की हेल्प करना सेफ्टी, वो मैंने किया, मेरा वर्क था और आपको भी फ्यूचर में हेल्प करना चाहिए। तो बनारस किंग को नॉलेज हो गया कि दिस इज नॉट मंकी, ये था बोधिसत्व। मतलब सैक्रिफाई किया, पूरा मंकीज को बचाया। ऐसे मंकीज थे कभी लाइफ में जो है ना। देखो बोधि ट्री का प्रेयर करते हैं। अब उस सर का जो पिक्चर था ना 200 वाला पूरा, हाँ इधर लोन में आ जाओ, गार्डन में थोड़ा गार्डन में आइए सभी लोग। कंप्लीट ट्री अम्ब्रेला, हर्मिका, डोम, तोरण सब कंप्लीट, ये पूरा पिक्चर आता है। लाइट भी प्रॉपर है। पता है ना इस प्लेस में 21 जून को नो शैडो, ये शैडो एंड होती है 21 जून, वर्ल्ड योग दिवस। जून 21 क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पार्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से कनेक्ट, नो शैडो 21 जून। ओके, ट्री अम्ब्रेला नहीं सर, इसमें तो जो है बोन्स थे बट ड्यूरिंग फॉरेस्ट जंगल में लोग डैमेज करके ओपन करके देखा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। बट नंबर 3 का रिकॉर्ड है अपने पास, वो बोन्स कलेक्शन किया। स्तूपा नंबर 3 एक्सकेवेशन किया कनिंघम, बोन्स मिला। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 अम्ब्रेला? सर 3 अम्ब्रेला का मीनिंग है ना बुद्धिज्म में त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और जो उनके डिसाइपल्स होते थे सिंगल अम्ब्रेला ओनली फॉर संघ, वो एनलाइटमेंट नहीं हुआ, ग्रुप में ज्वाइन किया। तो या तो सेल्फ एनलाइटमेंट हो, सो नॉट इजी, बुद्ध बनना नॉट इजी, लेकिन बुद्ध की टीचिंग फॉलो करना इजी था। तो कहते थे ग्रुप में रहिए, संघ में, और बुद्ध थे 3। സാഞ്ചി സ്തൂപത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹയാത്രികർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയുമായി ഞാൻ ആ പരിസര കാഴ്ചകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സാഞ്ചി സ്തൂപത്തിന്റെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഞാനങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിലാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബേസ്മെന്റ് കാണാം, ഏതോ മൊണാസ്ട്രിയുടെ തറയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. സ്തൂപത്തിന്റെ അകത്തെ കാഴ്ച കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ സ്തൂപത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി. ബുദ്ധ തിരുശേഷിപ്പ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള അർദ്ധഗോള നിർമ്മിതിക്ക് പുറത്തുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കാം. ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നടന്നു. ഇടതുവശത്തായി സുരക്ഷിത നിർമ്മാണം കാണാം. ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു കാടിന്റെ നടുക്കാണ് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചുറ്റും ഈ ഒരു കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള വേലിക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർദ്ധഗോള നിർമ്മിതിക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശന മാർഗമില്ല. സ്തൂപത്തിന്റെ പുറത്ത് സുർക്കി ആവരണത്തിന്റെ നശിക്കാത്ത ഭാഗം കാണാം. ഒരു കാലത്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് അർദ്ധഗോളം സുർക്കി മിശ്രിതം കൊണ്ട് ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറെ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ കാലത്തിന്റെ ആ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നശിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ അർദ്ധഗോളത്തിന് വലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. ചവിട്ടുപടിയിലൂടെ 2ാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറി. വീതി കുറഞ്ഞ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടന്നു. 4 കവാടങ്ങളിലുമുള്ള അതിമനോഹരമായ ശില്പവേലകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണാം. മലമുകളിൽ കാടിന് നടുവിലായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധസ്തൂപം. എത്രമാത്രം തൊഴിലാളികൾ ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടാകും
എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ബുദ്ധമത കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ സാഞ്ചിയിലെ സ്തൂപത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമന്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നമുക്ക് പിരിയാം. ഓക്കെ, ബൈ.